Good morning, students. Last time we were talking about microwave communication system, and before discussing complete microwave communication system, let us uh, become familiar with the different kind of propagations. Last time we discussed ground wave propagation, which was meant for low frequency. So now today we are going to discuss skywave propagation and others. Skywave propagation is also called ionospheric propagation। मैं जिदा पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਟ੍ਰੋਪੋਸਫੀਅਰ ਲੇਅਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਮੀਜ਼ੋ ਆ, ਫਿਰ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸੋਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਰਥ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਥਿਕਨੈਸ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਲੇਅਰ ਕਿੰਨੀ ਥਿਕ ਹੈ, मान लो अर्थ की सतह तो 70 किलोमीटर ऊपर तक कितनी गई, 500 किलोमीटर तक। ठीक है, थिकनेस ऑफ आयनोस्फीयर वेरीज फ्रॉम 70 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर, डिपेंड करता अर्थ का एनवायरनमेंट कितना था उस वेले, ਜਿਹੜਾ अर्थ का एटमोसफेयर है ਉਹਦਾ एनवायरनमेंट कितना था। So in this mode of propagation, EM waves are reflected back to Earth's surface from ionized regions in upper atmosphere called ionosphere। मैं पहला भी कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਰਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਵਸ ਥੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, in fact this mechanism is a reflection process। if a wave enters from one medium to other, it either bends away or bends toward the normal from the incidence point, depending upon the refractive indices and densities of the medium or layers। depend ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡੈਂਸ ਆ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਹੋਣੇ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਟੁਵਾਰਡਸ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਬੈਂਡ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦ ਨਾਰਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਹੇਅਰ ਫॉर द sake of convenience we can call it as a reflection phenomena। एक्चुअली दोनों ही ने, रिफ्रैक्शन ते रिफ्लैक्शन दोनों ही ने, क्योंकि रिफ्लैक्श भी होनी है, रिफ्लैक्शन भी होनी है, तो वेव ने जाना तो आना डिफरेंट लेयर्स ही पास करना, तो रिफ्रैक्शन भी होनी है। ठीक है, आयनोस्फीयर वेव प्रोपिगेशन इज द रिफ्लैक्शन फिनोमिना फ्रॉम वेरियस लेयर्स ऑफ आयनोस्फीयर। अलग अलग लेयर्स है जी आयनोस्फीयर दी लेयर्स है, जिमें डी 50 तो 90 किलोमीटर तो, ई 90 तो 150, F1 150 तो 250, F2 250 तो 500 किलोमीटर, इन दी फ्रीकुएंसी रेंज ऑफ 10 तो 30 मैगाहर्ट्ज़। यानी हाई फ्रीकुएंसी बैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰਿਕ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਹਾਈਟ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 50 ਤੋਂ 90 ਡੀ, ਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 90 ਤੋਂ 150, F1 150 ਤੋਂ 250, ਤੇ F2 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 250 ਤੋਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ। और ये ब्यूटी ये भी है, मैं दसदा अगे जाके। आ देखो, तो डे टाइम है जो जिदा हम इतने 0 मीनस रात के 12, आ तड़के के 2, तड़के के 4 बजे, सवेर के 6 बजे, सवेर के 8, सवेर के 10, तो दोपहर के 12, फिर 14 का मतलब दोपहर के 2, 16 का मतलब दोपहर का 4, शाम पै गई है ना, फिर 6 बजे, फिर 8, फिर 10, फिर 12। समझ आ गई। सो ये आर्स है लोकल टाइम है, जानी इस आर्स नाल जिहड़ी डी लेयर आ देखो वो 50 ਜਾਂ 70 किलोमीटर को लैके ਇੰਨੀ तक रहिंदी है। फिर उस तो बाद ई लेयर आ जाती है, ई लेयर की अपनी थिकनेस जानी डी दे ही ये सारियां आयनोस्फीयर दी लेयर्स हैं। वेरी कितों करता 70 तो लैके उपर 400 500 तक। इस तो उपर एफ लेयर आ जाती है। नोट करो रात के पर रात के 12 बजे तो लैके सवेर के 4 बजे तक एक कंडेंस रहिंदी है, जानी उस तो बाद सवेर के 6 बजे तो लैके तकरीबन शाम के 6 बजे ਜਾਂ 8 बजे तक ये लेयर जी आ टुट जाती। देखो जिथे F1 F2 ऐदा बन जानिया, तो F1 लेयर जी है तुम देखा होना ये हाइट होर घट गई किस वेले 6 तो लैके शाम के 6 बजे तक, यानी दिन के टाइम पर। और जो दसंबर का महीना होया थोड़ी जी लेयर की हाइट बढ़ गई, जे आ इक्विनॉक्स है उस तो बाद जून के होर हाइट बढ़ गई। आप समझ आ गई, यानी होर है। सो इस तरीके जी एफ लेयर है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। पता लग गया? हेलो हेलो, है ना। तो ये इंटायर जोड़ा इन्ना ई रीजन है, थले डी रीजन है, उपर जो एफ रीजन है एस तो लैके उपर तक चल। ठीक है, ये सारिया आयनोस्फीयर दी लेयर्स है। तो हाँ बच्चों जवाब 4 जुड़ गया हम।
मलिक, मानिब, साहिल, जपजीत, बेटे नींद नहीं खुलती है। आयनोस्फीयर ये मैं पहले तुहानू सैकंड ईयर च भी कराया सी, इज अपर पोर्शन ऑफ द एटमोस्फीयर विच अब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये जिहड़ा पोर्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी किहदी अब्जॉर्ब करता, सन तो अल्ट्रा वायलट रेज की फॉर्म दे विच, और वो हीट हो जाता ते आयोनाइज हो जाता, यानी उत्थे जिहड़े मॉलीक्यूल्स आ टुट जाते हैं हीट होने करके ते आयोनाइज हो जाते। आफ्टर रिसीविंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन of the sun, molecules of the ionosphere splits into positive and negative ions. These ions remains ionized for longer periods of time। ठीक है। 1925 ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਐਪਲਟਨ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, that due to ionization by sun's ultraviolet rays, ठीक है, these layers of ionosphere act as mirrors। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ 1925 ਵਿੱਚ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਐਪਲਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਰੇਜ਼ ਹੈ, सन ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਅਰਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮਿਰਰ ਜਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਮਿਰਰਸ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੀ, ਜਾਣੀ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੇਵ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਫਰੋਮ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਐਂਡ ਗੈਟਸ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰਾਦਰ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਕ ਥਰੂ ਦੀ डिफरेंट लेयर्स टू द रिसीवर ऑन दी अर्थ सर्फेस। पता लग गया। सो एक ये सिंगल ऑफ ट्रांसमिशन है, पहला भी मैं दसे सैकंड ईयर। ठीक है। सो हुण कहंदा इफ रिफ्रैक्टेड वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ अगेन गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड देन मल्टी ऑफ ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस। उन्ना कवरेज ज़्यादा कवर होगी लीडिंग टू लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। आयनोस्फीयर हैव एबिलिटी टू रिफ्लैक्ट EM वेव्स ऑफ, सिर्फ हाई फ्रीकुएंसी के 3 तो लैके 30 मैगाहर्ट्ज की रेंज के ही उन्हें आयनोस्फीयर जी लेयर की एबिलिटी है भी उन्होंने वेव्स को रिफ्लैक्ट करना हाई फ्रीकुएंसी बैंड। बट एज द फ्रीकुएंसी इज इंक्रीज्ड एट सम पॉइंट वेव इज नॉट रिफ्लैक्टेड बाय द आयनोस्फीयर रादर इट पेनिट्रेट्स थ्रू द एटमोस्फीयर। पता लग गया। तो जो फ्रीकुएंसी बढ़ती है वो वापस आने की बजाय अगे पेनिट्रेट कर जाएगी। फ्रीकुएंसी एट विच दिस हैपन्स इज नोन एज क्रिटिकल फ्रीकुएंसी। तो इस जी चीज़ इस प्रोसैस से वापरती है उन्होंने माली कहो बेटे। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ n ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ये इक्वेशन 6.1 आ और ये n मैक्सिमम की है डेंसिटी आ जिन्होंने ਅਸੀਂ पर मीटर क्यूब ਦੇ मेजर करते हैं। आ लो जी आ हॉफ की गल जिदा ट्रांसमीटर तो इतने रिसीवर तक आ सिंगल हॉफ हो गया, पर आयनोस्फीयर तो जिदा आते हैं मल्टी हॉफ इन्हें इन्ना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया जाने रिसीवर जिथे वो पै गए उत्थे रिसीवर रख देना। तो आ देखो एक इथों आई दो फस्ट ऑफ दैन सैकंड ऑफ, यदा मतलब देखो सेम ट्रांसमीटर तो देखो रिसीवर कितनी दूरी उन्हें तय की। तो ये भी एक डिपेंड करता। पता लग गया। हैलो आ सिंगल हॉप है, ये मल्टी हॉप च आ गया। ठीक है। सो इस तरीके जी प्रोपीगेशन होंगी है मल्टी हॉप प्रोपीगेशन या सिंगल हॉप प्रोपीगेशन। एंड दिस फ्रीकुएंसी वो जी फ्रीकुएंसी की गल की पिछे मैथमैटिकल एक्सप्रैशन क्रिटिकल फ्रीकुएंसी की, दिस वेरीज विद टाइम ऑफ डे। मैं दसिया दिन का टाइम की आ मतलब रात के 12 बजे तो लैके सवेर के 6 बजे तक, या सवेर के 6 तो लैके दोपहर के 12 बजे तक, या दोपहर के 12 तो लैके शाम के 4 या 6 बजे तक, तो शाम के 6 बजे तो लैके रात के 12 बजे तक। ठीक है। डिपेंड करता। और दूसरा फिर सीजन केड़ा, विंटर सीजन है, समर सीजन है या रेनी सीजन है। फिर जियोग्राफिकल पोजीशन किस तरह की है, अर्थ के किस पार्ट से ये चीज़ प्रोपीगेट हो रही है। ठीक है ना, उत्थे जियोग्राफिकल पोजीशन की, तो सारा कुछ इतने डिपेंड करता। ठीक है। उन्होंने उस हिसाब से प्रोपीगेशन होती है। ठीक है। आ देखो टाइम ऑफ डे के दौरान या टाइम ऑफ डे के दौरान ये जी क्रिटिकल फ्रीकुएंसी है देखो वेरी करती है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स वास्ते। ठीक है ना। ई लेयर वास्ते देखो पहला थोड़ा जहा एन एक पार्ट कॉन्सटेंट रही है, उस तो बाद थोड़ा जहा अबब हो जाती फ्रीकुएंसी बढ़ जाती है, फिर थले जाके घट जाती है टाइम पीरियड के दौरान। आ देखो ठीक है ना, DF1 लेयर विंटर के, फिर समर च देखो, और इस विंटर के ईवन विंटर के सवेर के मतलब 8 बजे तो लैके 12 बजे तक वो फ्रीकुएंसी कितनी वेरी कर गई, डिपेंड करता। पता लग गया। वेरीएशन ऑफ क्रिटिकल फ्रीकुएंसी विद सोलर एक्टिविटी, सूरज दी एक्टिविटी के नाल भी पता लग गया। ड्यूरिंग डे टाइम मतलब ड्यूरिंग डिफरेंट सीजनस वर्सेस
टाइम ऑफ डे डिफरेंट सीजन केड़ा जिवें विंटर है समर है या रेनी सीजन है तो आ सोलर एक्टिविटी करके एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी क्लियर हो रहा है बच्चे हेलो हाँ हेलो जी सर। हाँ आ गई तू सुत्ती नहीं उठते another term in सर this मेरा ना another term in the skywave transmission which comes into picture when there is a blackout of signals हाँ blackout मतलब कई बार धरती ते सानू पता ही नहीं लगता भी सिग्नल इतने है ही नहीं कहना आ ही नहीं रहा उन्होंने blackout बोलते हैं ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਸਕਿਪਡ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਸਕਿਪ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਡ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਜ਼ੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ skip zone is or dead zone extends from outer limit of the ground wave communication to the inner limit of the ionosphere अर्थ की मतलब ਜਾਂ ग्राउंड की आउटर लिमिट तो लैके इनर लिमिट कि आयनोस्फीयर की कई बार मैं मतलब कहना ग्राउंड पार्ट भी वो कवर नहीं होंगे तो कुछ पार्ट आयनोस्फीयर का भी नहीं कवर होंगे है इनू कहता वो कहता मतलब उन्ने एरिया सिग्नल ही नहीं आता उन्होंने ब्लैकआउट बोलते हैं पता लग गया हेलो अगे आ गई टर्म मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF बोलते हैं दिस इज अनदर टर्म इन स्काईवेव प्रोपेगेशन व्हिच कम्स इनटू पिक्चर MUF is the highest frequency which is sent back by हाँ मतलब तीन जिदा 3 तो 30 मैगाहर्ट्ज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਉਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ MUF ਕਹਾਂਗੇ ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ MUF ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਨੇਮ ਹੀ ਡਿਪਿਕਟ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ which is sent back by the ionosphere layer and depends upon the angle of incidence on the incident ray ਇਹ ਵੀ ਆ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅੱਛਾ MUF ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ 9 ਹੋਲ ਅੰਡਰ ਰੂਟ n ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੀਕੰਡ ਥੀਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ n ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦ ਰੇ ਇਨ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੇ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅਰ किस एंगल च मतलब और रे जी आयोनाइज लेयर की किस एंगल से बनी है ठीक है तो एन मैक्सीमम तो सूँ पता ही है इलैक्ट्रॉन डेंसिटी है ठीक है इनू इदा भी लिख सकते हैं तो MUF मतलब मैक्सीमम MUF की हुई 9 × होल अंडर रूट आप एन की जगह एन मैक्सीमम लिखता सीकंड थीटा ना रखता सीकंड थीटा थले आके कॉस थीटा बन गया रेसिप्रोकल हो गया और 9 तो जोड़ा अंडर रूट एन मैक्सीमम है वो सूँ पता है क्रिटिकल फ्रीकुएंसी आ देखो पता लग गया पिछे पढ़िया आप पहली इक्वेशन के 6.1 तो 9 × क्रिटिकल फ्रीकुएंसी ओवर कॉस थीटा पता लग गया सो यदा मतलब नाउ ये फ्रीकुएंसी इन यूज इज ग्रेटर दैन MUF जी फ्रीकुएंसी असी यूज कर रहे हैं अगर वो MUF तो वड्डी आ दैन सिग्नल बिकम्स नेगलिजिबल एट द रिसीविंग स्टेशन क्यों आना ही नहीं वापस उन्हें पेनीट्रेट कर जाना अगे ठीक है सिंस जे वापस नहीं आ रहा तो रिसीविंग स्टेशन से कुछ भी नहीं मिलना तो सिंस ऑल द सिग्नल्स अबव MUF पेनिट्रेट द आयनोस्फीयर पता लग गया एंड डू नॉट रिटर्न टू द अर्थ पता लग गया समझ आ गई हुण ये 2-3 चीज़ां दिखा लियां एक जगह फ्रीकुएंसी वेरी करके दिखा लिया एक जगह एंगल वेरीएशन दिखा लिया ठीक है आ ऑब्लीक इंसीडेंस यानी एंगल दे नाल ठीक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की गल की है ठीक है ये फ्रीकुएंसी के नाल रे जी रे पास फॉर फिक्सड एंगल ऑफ इत्थे हुण एंगल नूं फिक्स रख लिया एंड वेरिंग फ्रीकुएंसी जे तो जी यूज फ्रीकुएंसी MUF तो घट सिग्नल वापस आई जाना रिसीवर फिर मतलब आ ये बराबर है तो भी वापस आई जाना जे उस तो बाद तो पेनीट्रेट कर देना समझ आ गई हेलो ठीक है इतने वेरिंग एंगल ऑफ हाँ जी सर वेरिंग एंगल बीटा नॉट ते बीटा 1 ते बीटा 2 ते सो वो हिसाब के नाल जे बहुत बड़ा लार्ज एंगल है उन्हें पेनीट्रेट कर जाना अगे समझ आ गई सो 2 तरीके नाल वेरी कर दिया इस तरीके इन एडिशन टू द स्किप जोन और डेड जोन प्रॉब्लम ऑफ द डिस्टेंस लेस दैन 1000 किलोमीटर का रेडियो लिंक डिस्ट्रप्शन कैन अकर अच्छा स्किप जोन तो इलावा यानी डेड जोन तो इलावा जी प्रॉब्लम अकर होंगी है फॉर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर तो घट तो ये पार्ट कवर मतलब कई बार 1000 किलोमीटर के दायरे के सूँ ब्लैकआउट हो जाता सिग्नल मिलता ही नहीं इस तो इलावा एक होर भी कारण है वो है रेडियो लिंक डिस्ट्रप्शन डिस्टरप्ट हो गया है ना
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਪਹਿਲਾਂ DD1 DD2 ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ DD ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੇ लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, पता लग गया, अक्सर भी कहते हैं इदा रेडियो लिंक की डिस्ट्रप्शन हो जाए, डिस्ट्रप्ट हो गया किहदे करके, कहना कि ड्यू टू सन स्पॉट एक्टिविटी एंड हायर डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, इट कॉज्ड बिकॉज ऑफ सडन गैसेस आउटबस्ट। हाँ ये क्यों, क्योंकि सडन गैसेस आउटबस्ट हो जाता, फिर सिग्नल रिफ्लैक्ट होकर वापस नहीं आता, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਪਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। Hence it is concluded that EM waves of frequency more than 30 megahertz are not reflected back, rather these waves penetrate into the atmosphere. Ionosphere contains large concentration of charged gases, ions, free electrons, neutral molecules, पता लग गया। These large concentration tend to bend all passing electromagnetic waves, पता लग गया। इदा आ देखो डिफरेंट लेयर्स ਤੋਂ इदा waves वापस आई जानी, जिथे आ गई उत्थे रिसीवर, जिथे आ गई उत्थे रिसीवर, समझ आ गई, पता लग गया। डिपेंड करता उन्हां लेयर्स दी आयोनाइजेशन दी डेंसिटी कितनी है, दी एंगल बाय विच वेव डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, ठीक है। आ देखा स्ट्रेट पाथ है, जिथों एंगल जिस एंगल तो डेविएट होंगे डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग फैक्टर्स, मतलब जी हुण इस एंगल से जाके डेविएट हुई, आ इत्थों हो गई, आ स्ट्रेट पहले जा रही फिर इत्थों जाके डेविएट हुई, तो ये डेविएशन किस ते डिपेंड करती है, फ्रीकुएंसी ऑफ द रेडियो वेव्स, कितनी फ्रीकुएंसी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच वेव एंटर्स द आयोनोस्फीयर, ऑब्वियसली किस एंगल ते एंटर की, डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन द आयोनोस्फीयर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, नैचुरली उत्थे डेंसिटी कितनी है उस मोमेंट के जितों बेंड होना, थिकनेस ऑफ द आयोनोस्फीयर एट दैट पॉइंट, तो आयोनोस्फीयर की थिकनेस कितनी है जितों ने इंसीडेंट होके बेंड होके आना, ठीक है। यूजेस की है स्काई वेव प्रोपगेशन यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, यूज फॉर लार्ज डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन एंड ऑल शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन। स्काई वेव प्रोपगेशन कवर्स अप्रॉक्सीमेटली 4000 किलोमीटर इन सिंगल हॉप, तो मल्टी हॉप तो ज़्यादा करूगी, ईवन एंटायर कॉन्टीनेंट कैन बी कवर्ड विद वाई स्काई वेव प्रोपगेशन, पता लग गया। हेलो, हुण आपां गल करांगे स्पेस वेव दी। वी आर वेरी मच कंसर्नड इन माइक्रोवेव विद स्पेस वेव कम्युनिकेशन, समझ आ गई। इन स्पेस वेव ये लाइन ऑफ साइट में फॉलो करता, स्पेस वेव ट्रैवल्स इन स्ट्रेट पाथ, जिथे आ गल आ गई मतलब LOS है बिटवीन ट्रांसमिटर रिसीवर और बीइंग रिफ्लैक्टेड बाई ग्राउंड, या तो सीधा या रिफ्लैक्ट तो इतों एंटीना तो आ इनडायरैक्ट वे ना जाना एंटीना दे ही आ, तो यह पाथ थोड़ा जिहा ज़्यादा ले लूगा, यदा पाथ लेंथ डिफरेंस डायरैक्ट वेव तो ज़्यादा हो गया, समझ आ गई। उदा एंटीना तो ट्रांसमिटिंग एंटीना तो रिसीविंग एंटीना के गैप कितना डिस्टेंस D आ गई गल, मतलब जे ये रेंज च आ गया, सेन च आ गया, LOS च आ गया इतना, तो स्पेस वेव की प्रोपगेशन की गल करता हो, तो आ ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट, रिसीविंग एंटीना की हाइट, पता लग गया। LOS ने नहीं फॉलो करना, दी मोड ऑफ प्रोपगेशन इज आल्सो नोन एज LOS because in this mode of propagation transmitting antenna can see the receiving antenna, obviously in space wave propagation EM waves travel in the lower levels of the atmosphere, हाँ अर्थ दे मतलब घट हाइट ते, मतलब जिदा जी आयनोस्फीयर लेयर है वो जो थोड़ी वध हाइट ते है, ठीक है, मीजो आइनो, ठीक है, उस तो बाद उपर आ जाती एक्सो, ये मतलब घट हाइट ते है उन्होंने तो भी, तो उन्हें क्या इन स्पेस EM waves travels in the lower levels of the Earth's atmosphere as explained in the section of sky wave, उत्थे किया that propagation of radio waves about 40 megahertz which is being a beginning of TV transmission band is not possible through the surface and sky wave. Surface means ground wave, ground wave तो है ही 2 megahertz ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3, ਤੇ sky wave 3 ਤੋਂ 30 megahertz ਲਈ, पर जे ਅਸੀਂ 40 megahertz ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ मतलब ये दोनों तरह दी प्रोपगेशन, सरफेस जिन्हों असीं ग्राउंड वेव प्रोपगेशन है, स्काई वेव जिन्हों असीं आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन कहने आ, इट्स नॉट मेंट फॉर हाई फ्रीक्वेंसी, ਇਹਦਾ मतलब फिर इतने कोई होर अल्टरनेटिव लभना पऊगा एंड दैट इज स्पेस वेव, ठीक है। 10 ओनली अल्टरनेटिव की है फॉर द ट्रांसमिशन इन वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी बैंड इज बाय द स्पेस वेव विच ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ट्रांसमिटर रिसीवर डिस्पाइट लार्ज अटेन्यूएशन, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ट्रांसमिटिंग तो लै एंटीना तो लैकर रिसीविंग एंटीना सीधा ही जाना उन्हें, भावें कहता जिन्ना मर्जी लॉस हो, फॉलो ही वही करना LOS पाथ। लिमिटेशंस की ने
At this mode, space wave propagation follow the line of sight propagation. हाँ, as this mode उन्हें आई फॉलो करना, सो इट हैज सर्टन डिसएडवांटेज आल्सो। क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ साइट में फॉलो सेम च ही रहना। फिर जे कोई मान लो सामने टॉल या मैसिव ऑब्जेक्ट आ गया ਉਹਦੇ इस वे ऑफ प्रोपिगेशन ਦੇ अगेंस्ट, ਉਹਨੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ऑब्स्ट्रक्शन देगा, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਜ਼ੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਨੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਅਨਈਵਨ ਹੈ, ਨॉन यूनिफॉर्म है, फिर डिफरैक्शन हो जाती, स्कैटरिंग हो जाती है, या फिर सानू शैडो जोन मिलेगी, क्योंकि रिसीविंग एंटीना ट्रांसमिटिंग एंटीना दी LOS विच नहीं है। तो पाथ डिफरेंस भी आ जाना, पाथ लेंथ डिफरेंस मैं पहले दस्या। एज आल्सो पाथ डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय ऑब्स्टैकल बिटवीन द डायरेक्ट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूसेस गोस्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ द रिसीवर। ओबवियसली देखो दो सिग्नल आ रहे, जिदा उपर दस्या सी, एक सीधा, एक उपरों धरती तो रिफ्लैक्ट होकर फिर जाता हैगा, तो सेम सिग्नल है। फिर वो जोड़ा बाद च पाथ लेंथ डिफरेंस करके रिसीवर के उपर इदा जिदा JS घेड़ा नज़र तो आ रहा, उस तो बाद उपर भी वो जस्ट उस ही पिक्चर के उपर भी उन्होंने एक शैडो जहा नज़र आ रहा, भूत जिन्होंने कहने गोस्ट। समझ आउंदी? इदा पुराने टीवी होंदा सी जिथे खास करके रिसेप्शन पुअर होंदी सी, ठीक है। So it is due to path difference, but as the space waves are dependent on the LOS condition, space waves are limited in their propagation by the हाँ ये दी बड़ी लिमिटेशन है। जेकर देखो अर्थ का करवेचर ही अपने आप दे विच बिग हर्डल है। देखो धरती गोल आ, हुण धरती गोल है तो एक एंड ते ट्रांसमिटिंग एंटीना, दूजे जाके दूजे एंड ते ला के रखो। कभी ग्लोब देखा? कई बार कंट्री एक बिल्कुल सिखर ते एक थल्ले आ, ते किद्दां जाऊगा? फिर वो सैटेलाइट के थ्रू पॉसीबल है, ठीक है, कम्युनिकेशन। क्योंकि एक सैटेलाइट ना 120 डिग्री, जो 10 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से रख दिए तो 360 डिग्री से इंटायर ग्लोब की कवरेज हो जाती। क्लीयर? पर यह लिमिटेशन है, अर्थ का करवेचर भी अपने आप के एक बड़ी हर्डल है LOS वास्ते। उस बाद टॉल बिल्डिंग्स या हाई राइज बिल्डिंग, इस करके इन्हों बचाने वास्ते असीं की करते, जोड़े ये एंटीनाज है वो असीं ज़्यादा हिल्स से या माउंटेन्स से या हाई राइज हाई हाइट से असीं उन्होंने इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। Except in very unusual circumstances, the range of communication can be increased by increasing the height of the, obviously पहले दसता, क्योंकि रेंज कम्युनिकेशन की क्यों बढ़ाई जा सकती है भी उन्होंने रास्ते में कोई रुकावट ना हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना, कोई बड़ी पहाड़ी ना आ जाए, कोई बड़ी बिल्डिंग ना आ जाए। इस करके असीं ज़्यादा जोड़े एंटीनाज ने हाई हाइट के उपर उन्होंने इंस्टॉल कर दिया अगे। एंड जनरली VHF कम्युनिकेशन 10 तो लैके 300 मेगाहर्ट्ज फॉर TV सिग्नल और रडार इज यूज फॉर स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ट्रोपोस्कैटर, ट्रोपोस्कैटर प्रोपगेशन की है, ट्रोपोस्कैटर प्रोपगेशन। ये ट्रोपोस्फीयर दे विच अर्थ दे देखो जिहड़ियां 4 लेयर सी दसियां, ट्रोपो, मीजो, आयनो, एक्सो। उन्हां विच जिहड़ी ट्रोपोस्फीयर है अर्थ ते लोअर लैवल ते यानी 18 किलोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली, कई 16 भी लिखते हैं, कोई गल नहीं। अबव फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच इज यूजफुल कादे लिए यूजफुल है? रेडियो कम्युनिकेशन इन सर्टन फ्रीक्वेंसी रेंजेस। पता लग गया? तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इन दिस लेयर डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। जिहड़ी उस लेयर तो वापस होकर सिग्नल आएगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी, उसका एम्पलीट्यूड कितना, वो डिपेंड करता उस लेयर दी प्रॉपर्टीज कितना। ट्रोपोस्फीयर बीइंग ए नॉन होमोजीनियस मीडियम, नॉन होमोजीनियस मीन जिहड़ा इक्को जिहा नहीं है, तो रेज बेंड इन दिस मीडियम ऑबवियसली किते मीडियम ऑबवियस जो नॉन होमोजीनियस होना मीनस इक्को जिहा नहीं। मान लो कोई पार्ट डेंस है, कोई ट्रांसपेरेंट है, किते घट डेंसिटी किते वध डेंसिटी है, तो फिर रे ने जो प्रोपीगेट करना उन्हें बेंड होना ही होना, क्योंकि एक मीडियम तो दूजे मीडियम जाने हैं तो रिफ्रैक्टिव डेंसिटी जी चेंज होती है। सो ऑल्सो ड्यू टू द टर्बूलेंस इन द मीडियम। टर्बूलेंस का मतलब होंगे जिदा आप पानी के टर्बूलेंस नहीं देखते, गड़बड़ाहट इदा उछलना, तो इदा ही टर्बूलेंस मीडियम में टर्बूलेंस क्रिएट होने करके एक ट्रोपोस्कैटर वॉल्यूम या ट्रोपोस्कैटर स्कैटरिंग आकर हो जाती है। पता लग गया? टर्बूलेंस इन द मीडियम, ड्यू टू टर्बूलेंस इन द मीडियम ट्रोपोस्कैटर वॉल्यूम या ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर आकर हो जाता उत्थे। तो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर प्रोपगेशन विल बी डिस्कस्ड इन मोर डिटेल इन द सबसीक्वेंट सेक्शन ऑफ OTH ओवर द हॉरिजन माइक्रो। आप इन्हें जस्ट इंट्रो दी है, अगे मैं गल करता, ठीक है। हुण माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की गल करते, जिदा पॉइंट
3 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ HU ਉਹਦੀ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਫॉर ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ UHF ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ UHF ਰੇਂਜ ਤੇ EM waves propagate almost similar to light waves. Microwave communication systems are employed at these frequencies. पता लग गया? Microwave communication system ਦੀਆਂ characteristics ਕੀ ਨੇ? ठीक है? It is characterized by the following factor. Number 1, इन्हें LOS ਨੂੰ follow करना, उसी path ਨੂੰ follow करना. Signal follows straight line और LOS path. Line of sight communication limited by the horizon due to Earth's curvature. Yes, ठीक है. Earth ਦਾ curvature ਹੀ मतलब वो अपने आप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ मतलब लिमिटेशन यूजफुल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लाइंग बिटवीन 300 हाँ प्लस पॉइंट है 300 मेगाहर्ट्ज ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ 150 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ in fact it is even beyond 150 so due to huge bandwidth availability ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ bandwidth ਕਿੰਨੀ ਹੈ तो it permits transmission of more information per RF carrier having wider RF band obviously जिन्नी बैंडविड्थ ज़्यादा हुई ਉਹਦਾ कैरियर भी ज़्यादा होना उन्हें इन्फॉर्मेशन भी ਵੱਧ कैरी करनी so signal propagation is affected by free space attenuation and precipitation obviously ਹੁਣ troposphere ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ troposphere ਤੇ 90% ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ फिर प्रेसिपिटेशन किस तरह दिया तो फिर सिग्नल की अटेन्यूएशन तो होनी होनी थोड़ी बहुत अब्जॉर्प्शन करके ठीक है ਜਾਂ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦਾ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਫੇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪਰੈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵੀ TDM ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ एनालॉग फॉलो करते हैं उस तरीके का टेक्निक ठीक है हम क्लासिफिकेशन की माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की आ देखो एनालॉग भी हो सकती है डिजिटल भी हो सकती है ठीक है डिपेंड करता एनालॉग माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन LOS एंड OTH एज वेल LOS मीन लाइन ऑफ साइट OTH मीन दस्या ऊपर OTH मीन ओवर द हॉरिजन पता लग गया ओवर द डिजिटल माइक्रोवेव वो भी LOS बेस्ड ऑन LOS एंड OTH ठीक है एनालॉग माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम की गल करा देखो है 9-10 मिनट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक परफॉर्मेंस फंक्शन ऑफ यूजिंग पॉइंट टू पॉइंट माइक्रोवेव ट्रांसमिशन बिटवीन रिपीटर्स ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ 25-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ 25-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਟੀਨਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕਾਸਟਲੀ ਆ ਐਂਟੀਨਾਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ कंट्रोल रूम भी पूरा सैट करना पैंदा ताकि इधरों एक लिंक तो सिग्नल है ना गांह प्रोपीगेट करना मान लो जिदा इतों पठानकोट जलंधर तो 110 किलोमीटर है तो 40-40 किलोमीटर से 3 लगने फिर यदा मतलब समझ आ गई 40 तो 120 110-15 किलोमीटर है तो जे असी कहिए भी 40 किलोमीटर टांडा हो गया उस तो अगे अगे आ गया मकेरियां ਜਾਂ अगे होर आ गया मतलब वो 80 किलोमीटर के दायरे फिर अगे 115 ਜਾਂ 20 ਦੇ मतलब फिर एक लग जाना उत्ते पठानकोट जाके इदा जे लिंक इनू कहते रिपीटर्स माइक्रोवेव लिंक प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इट यूजेस माइक्रोवेव रेंज टू एस्टैब्लिश लिंक फॉर कम्युनिकेशन मेजॉरिटी ऑफ द माइक्रोवेव लिंक्स ऑपरेट इन 4 ਤੋਂ 6 गीगाहर्ट्ज की रेंज ਵਿੱਚ बट सम लिंक्स ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी एज लो एज 2 गीगाहर्ट्ज भी ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ 13 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਵੀ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਐਟ ਐਜ਼ ਹਾਈ ਐਜ਼ 13 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਲਿੰਕ ਯੂਜ਼ਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਫॉर ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ठीक है since the microwave travels only in LOS path it's necessary to provide repeater stations at every after at about 50 kilometer interval मैं पहले क्या which may be located on a special tower or on a hill large spacing between repeaters cannot be used because of very high attenuation with the distance पता लग गया even repeaters at about 50 kilometer interval makes the microwave link system costly but this can be compensated by increasing the channel capacity जे लिंक रिपीटर 50 किलोमीटर से लाना लगता तो कॉस्टली है सिस्टम बहुत बड़ा बनता ठीक है तो मैन पावर भी चाहिए एंटीनास वगैरह होर कंट्रोल सैक्शन चाहिए पर फिर कहता वह कॉस्ट में कंपनसेट करने वास्ते कहता चैनल कैपेसिटी बढ़ा दो ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत बढ़ा दो कहते किसी पास तो साਡਾ लॉस कवर हो आ देखो एनालॉग माइक्रोवेव लिंक की ब्लॉक डायग्राम एक लिंक आ माइक्रोवेव लिंक की आ देखो सिंपलीफाइड ब्लॉक डायग्राम माइक्रोवेव लिंक कैरियर चेन शोन रिसीविंग फ्रॉम A डायरेक्शन एंड ट्रांसमिटिंग एंड B डायरेक्शन मतलब A डायरेक्शन जो मान लो सानू रिसीव कर रहा ठीक है A डायरेक्शन तो
इधरों हम बी च जाना अगे फर्दर टू द बी डायरेक्शन, पिछों सिग्नल आ लिया, ठीक है ना, इन्हें रिसीव किया गांह भेजने वास्ते नैचुरली आ पार्ट हैगा सर्कुलेटर का। तो सर्कुलेटर माइक्रोवेव तुहानूं पढ़ाया ने साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना, पता लग गया। एंटीना जाना किनू पहला रिसीवर मिक्सर नूं, रिसीवर मिक्सर नूं डायरैक्ट देने की बजाय असी रिसीवर प्रोटैक्शन सर्किट लगा दिता पहला, ठीक है। तो रिसीवर प्रोटैक्शन मीनस क्योंकि रिसीवर मिक्सर रिसीवर का पार्ट है, इन्ना पार्ट रिसीवर का पार्ट है। फिर तुम नोट करो हर मिक्सर में मिक्सर दी दो इनपुट होंगी, उन्होंने कटो और आउटपुट एक ही होंगी है, और वो आई एफ की फॉर्म च होंगी है, पता लग गया होना तुम, ठीक नहीं। जो आप सुपर हीटर रेडियो रिसीवर पहला पढ़ा, मिक्सर में दो इनपुट, एक तो वो आ गई ए डायरैक्शन तो थ्रू रिसीवर प्रोटैक्शन सर्किट सर्कुलेटर के थ्रू, दूजी जी असी खुद देनी आ, वो की करते हैं इधर देखो इत्थे एक आ मिक्सर है, फिर इनू दो इनपुट दे दियां किहड़ियां, एक शिफ्ट ऑसीलेटर की, दूजी पावर स्प्लिटर की। पर पावर स्प्लिटर को असीं एनर्जाइज करना माइक्रोवेव सोर्स नाल, ठीक नहीं। तो माइक्रोवेव सोर्स का पावर स्प्लिट कुछ पावर असीं मिक्सर में दे देनी एज सिग्नल, तो कुछ पावर असीं ट्रांसमीटर मिक्सर में देनी। पावर स्प्लिटर ने तां ही किया इनू एनर्जाइज करना, बेसिकली माइक्रोवेव सोर्स की पावर ही स्प्लिट हो रही है, एक जा रही है रिसीवर वाले मिक्सर में आस मिक्सर में, दूजी जा रही ट्रांसमीटर मिक्सर में, पता लग गया। और मिक्सर में हमेशा क्या भी दो इनपुट्स होंगी, जिदा ये भाव ट्रांसमीटर मिक्सर है, एक एम्पलीट्यूड लिफ्टर की आउटपुट आ रही, दूजी एस पावर स्प्लिटर की आ रही, एस मिक्सर में शिफ्ट ऑसीलेटर की एक आ रही है, दूजी पावर स्प्लिटर तो आ रही। तो ये भी अगे फ्रीकुएंसी जी प्रोड्यूस कर गया, एक किस्म की वो आई एफ टाइप ही बन जानी है। पर अगे तुम बैंड पास फिल्टर देखो, ये लोकल ऑसीलेटर है, लोकल ऑसीलेटर जी फ्रीकुएंसी जनरेट की बाद फिल्टर भी नाल लगाता, ये इनू असी अगे जनरेट देती। बेसिकली तो लोकल ऑसीलेटर फ्रीकुएंसी जनरेट करनी है, इसने गां आई एफ प्रोड्यूस करनी है, पर इन्हें फिल्टर लगाता, उस लगाता 70 मैगाहर्ट्ज़ का फिल्टर लगाया ताकि इस ते नॉइज़ घट मिलती है, ये उन्हें विच जिक्र किया, ठीक है। 70 मैगाहर्ट्ज़ से नॉइज़ घट प्रोड्यूस होती है, और इट इज़ आई एफ। फिर इनू अगे एंपलीफाई कर लेना, क्योंकि बहुत सारिया स्टेजेस इनवॉल्व है, गेन घट जाता, जे वध गया तो कंट्रोल कर लेना, और गेन नू कंट्रोल करने दो तीन मैथड आप पहला भी पढ़े थे, डिले करके एजीसी वगैरह लगा के, है ना, तो असी गेन कंट्रोल कर देंगे, तो ऑटोमैटिक गेन कंट्रोल। फिर वह गेन नू कंट्रोल करके एंपलीफाई करके अगे भेजना। मान लो जो सिग्नल आ रहा है वो एंपलीट्यूड कोई वेरीएशन आ रही है, लिमिट कर लिया, फिर इस आउटपुट को जी आई एफ के थ्रू एंपलीट्यूड लिमिटर असी ट्रांसमीटर मिक्सर में दें, इधरों पावर स्प्लिटर दें, ट्रांसमीटर मिक्सर ने फरदर अगे एक किस्म की होर फ्रीकुएंसी करनी जी डिजायर्ड है, वो असी ट्रांसमिट करनी है, वो फिर बैंड पास फिल्टर अगे लगाया उन्हें ट्रांसमिट फ्रीकुएंसी में, मतलब जी इन्हें ट्रांसमिट मिक्सर ने की अगे फिल्टर भी लगा, तो उन्हें उन फिल्टर फिल्टर उस फ्रीकुएंसी में फिल्टर करके ट्रांसमीटर में देनी है जी बी डायरैक्शन आना, पर पहला पावर बढ़ानी वो पावर एंपलीफायर लगाया, ठीक है। फिर अगे सर्कुलेटर लगा, तो सर्कुलेटर ने आ तुम देखो उत्थे बी डायरैक्शन वाला एंटीना, मतलब जी असीं कहिए टुवार्ड्स बी डायरैक्शन रिसीवर या फ्रॉम द ए डायरैक्शन ट्रांसमीटर, इदा भी कह सकते हैं। जे उधरों इनू पहला रिसीवर कहने सी तो इनू ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, समझ आ गई। एक चेन है, एक चेन है, मतलब वन एंड तो दूजे एंड तक जाना, क्लीयर हुई गल। हेलो हाँ बच्चों, हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर, ठीक है। पावर हाँ यस, हुण आप अगे चलते हैं, है कि अज 3 मिनट, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम सारी दिखाती है, मैं पहले तुम दसता, देखो आ सारी कली कली स्टेजा दियाँ आप डिस्कस की, आ देखो मैं पहले कहा भी 70 मैगाहर्ट्ज़ से क्यों रखते, नॉइज़ रिडक्शन की करके, ठीक है नहीं, नॉइज़ करके। एंटीना कि सर्कुलेटर का की रोल है, प्रोटैक्शन सर्किट है जोड़ा, ताकि वो रिसीवर का मिक्सर जो बर्न ना हो जाए, तो डैमेज ना हो जाए, उन्होंने बचाने लिए। रिसीवर मिक्सर कितना का आता, रिसीवर मिक्सर कहते स्कॉटकी बैरियर डायर बेस्ड है और लो नॉइज डिवाइस है, पता लग गया, ठीक है। रिसीवर मिक्सर सर्किट इज एनर्जाइज्ड बाय इनकमिंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड अनदर सिग्नल फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द लोकल ऑसिलेटर व्हिच शुड बी हायर देन द इनकमिंग सिग्नल बाय 70 मेगाहर्ट्ज़। ऑब्वियसली डिफरेंस जो मिक्सर ने देने होंगे आ, जो आप सुपर हीटोडाइन में कहने कि जे मैं 455 किलो हर्ट्ज़ कढ़नी है, तो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीकुएंसी बढ़ा के वो बदनी कि हिसाब ना इनकमिंग के हिसाब ना, ताकि डिफरेंस जो 455 आए। इदा ही एफ एम रेडियो रिसीवर के होंगे, जो सुपर हीटोडाइन है उत्ते 10.7 मैगाहर्ट्ज़ कढ़नी है, तो जो लोकल ऑसिलेटर ने मैगाहर्ट्ज़ की रेंज की फ्रीकुएंसी जनरेट इस हिसाब से करनी है
कि इनकमिंग सिग्नल ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜੋ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਨੂੰ 10.7 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ IF ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਕੀ ਆ ਅਗਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ IF ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੇ AGC ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, AGC ਦਾ ਰੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਲਿਮਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ट्रांसमिटर मिक्सर आ देखो कहना वैरेक्टर डायोड यूज किए उत्थे इन दिस मिक्सर फॉर द पर्पस कन्वर्ट टू IF, मतलब आप इट इज यूज टू कन्वर्ट IF फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिटिंग माइक। हुण IF ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ट्रांसमिटिंग माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨਾ। ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਅਗਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਰਕਟਸ ਪਰ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਸਪੀਕਰ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨੇ। तो आ सारा थोड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी। 1 मिनट तो हम घट रह गया ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है। माइक्रोवेव सोर्स ਤੇ ਉਹੀ क्लेस्ट्रॉन गन ऑसिलेटर्स वगैरह यूज करते हैं। पावर स्प्लिटर ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। शिफ्ट ऑसिलेटर, बैलेंस मॉड्यूलेटर, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਪਾਸ ਫਿਲਟਰ। ਮਤਲਬ ਆ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਈਵਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਦੇਖੋ ਅਦਰ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਲਿੰਕ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਪੇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਐਂਟੀਨਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2700 ਚੈਨਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਨਾਓ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੈ ਲਿਆ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਗੁੱਡ ਡੇ। ਓਕੇ ਸਰ।